So guys, very good morning to one and all. In last class we were talking about maxima and minima of single variable or maxima and minima of one variable. Geometrical interpretation we had done in the last class, mathematical interpretation we had done in the last class, and some questions we had done as well. So some more question we will be evaluate today. The concept is the mathematical interpretation is same, the mathematical formulas are same, but the question will be of a language question. So just focus on the question and create accordingly, because I think in last class we had done one or two questions of these type, like cone and cylinder and all. So these questions are very important. So you have to create the extremum function, which function you have to maximize or minimize. You have to create it first. It is not already given in the question, and accordingly we will solve. So I am presenting my screen. Just focus on the question, it's very important. Could anybody please confirm the slide is visible or not? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Just a second. Okay, so this was the geometrical interpretation of maxima and minima of one variable, and we had done the mathematical formulas as well, stationary points, critical points, saddle points, and formulas accordingly. This question we had done in the last class, this question as well. This question as well, and this was the last question we were talking about. It's very important. It's a geometrically based question, so you have to focus on this question, you have to focus on the language of this question and all the things. It's very interesting question we had done in the last class. Yes, so we start with this question. Show that the height of the cylinder of the cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius r is 2r upon under root 3. देखिए, show that the height of this cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius r. एक sphere है radius r का, रेडियस आर का एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है. उस सिलेंडर के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है. किसे मैक्सिमम करना है? हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है. ये सिलेंडर एक स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर बना हुआ है. तो जब आप इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करेंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि उस केस में हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 2r अपॉन अंडर रूट 3. और you can say at this height h is equal to 2r upon under root 3, the volume of the cylinder will be maximum, which is inscribed in a sphere of radius r. Or you can say in terms of h that this height h is equal to 2r upon under root 3 will be maxima. So guys, the question is very clear to everyone or not? Yes, sir. ओके, जिसने लास्ट क्लास का रिवीजन किया होगा उसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा.
ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सिलेंडर बनाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये एक स्फीयर है, दिस इज़ द स्फीयर, और इस स्फीयर की रेडियस r है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने बनाया है। इस सिलेंडर की हाइट h है। ये जो स्फीयर है इसका सेंटर O है। इस स्फीयर की रेडियस r है। ये जो सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर का भी एक सर्कुलर पार्ट होता है, आपको भी पता होगा। कोई भी सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर नॉर्मली ऐसा बनता है, आपको भी पता है। उसका एक सर्कुलर पार्ट भी होता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस सर्कुलर पार्ट की, सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो x है। सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो x है। तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस है OB, ये x हो गई। ओके, फाइन। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको फोकस करना है कि आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसे करना है। तो हमें किसे मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर h, यही फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r का मतलब वहाँ पे फॉर्मूले में ये होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर x है, इसलिए पाई x स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले ये बताइए आप। नो सर। गुड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब जैसे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो नो डाउट इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड ऑल। अब इस वॉल्यूम को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? x के रेस्पेक्ट में करें या h के रेस्पेक्ट में करें? h के रेस्पेक्ट में सर। करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो भी प्रूफ करना होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आपको हाइट प्रूफ करनी है, 2r/√3 होगी। इसका मतलब आपको इस वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में करना है। h के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन इस x को फिर हटाना ज़रूरी है। x को फिर पूरी तरह से h में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये h है, तो नो डाउट ये जो आधी हाइट हो गई h/2 हो गई। तो AB जो हो गया वो h/2 हो गया, हाफ ऑफ द टोटल हाइट। तो आपको OA पता है r, OB पता है x और AB पता है h/2। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x का वैल्यू क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। इस x स्क्वायर का वैल्यू आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वाले फॉर्मूले का जो x स्क्वायर उसमें पुट कर दीजिए। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बनेगा पाई h, ये पाई ये h, और x स्क्वायर का वैल्यू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली h में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने dv/dh फाइंड आउट किया। dv/dh आप प्रोडक्ट रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना है h के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए। वैसे भी r जो है स्फीयर की रेडियस है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये कांस्टेंट है। dv/dh फाइंड आउट किया
बहुत सिंप्लीफाई आराम से कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और डी वी अपॉन डी एच को नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैक्सिमा मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वी विल पुट दिस डी वी अपॉन डी एच एज 0. So this dv upon dh is 0. If we put dv upon dh is 0, it means r square minus 3 by 4 h square is 0. It means h is equal to 2r upon under root 3. So after putting dv upon dh is equal to 0 according to necessary condition of maxima and minima, you will get only one stationary point. Same as last question, only one stationary point or critical point. So no doubt this will be the answer because there is no other point, so this will be the answer. But we have to check it whether this is maxima or not. For this we will differentiate again dv upon dh and find d square v upon dh square. d square v upon dh square find out कीजिए और उसमें h का वैल्यू जब आप पुट करेंगे you will get negative quantity. It means h is equal to 2r upon under root 3 is basically maxima. यही हमें प्रूव करना था कि h is equal to 2r upon under root 3 per volume of the cylinder which is inscribed of a sphere of radius r will be maximum. Yes, the volume of the cylinder is maximum when h is equal to 2r upon under root 3. Any doubt in this question? No, sir. Yes, I think everybody has got it. It's a Yes, very sir. interesting No, sir. question, very nice question. Yes. Yes, sir. Yes. बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए अच्छे से और फिर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Okay, let's move to next question. Oh, this is it. Okay, this was the last question. So this is it in maxima and minima. If you have any doubt, then please ask. We have done, I think, 4 questions of all the variety. 4 or 5 questions. देखिए, this was our first question, which is quite straight with algebraic polynomial. Second question was not quite straight but very interesting with trigonometry functions. Third question was with, yes, function raised to the power function, fx raised to the power gx, and we used the approach of logarithmic. Fourth question was a geometrical question of cone, and fifth question is again geometrical question based on cylinder and sphere. So more or less I have covered all the varieties of questions. Now you can do other questions of maxima and minima of one variable with by using your books, e-books, or I will upload assignment very soon. You can do that assignment as well in the Google Classroom itself. Yes guys, any doubt please ask. Yes, we have a lot of time. If you have any doubt, then please ask. सर ये जो गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट होती है ना, ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मैंने अभी 2 ही असाइनमेंट अपलोड किए. Okay.
कोई तो प्रॉब्लम नहीं पीछे है। वाले थोड़े अपलोड करने हैं। नहीं, समवॉट क्लियर कौन से? पीछे वाले करने हैं अभिषेक, लेकिन आप बाद में करने हैं जब आपको टाइम मिले, क्योंकि आपका लेट एडमिशन हुआ है। ठीक है, अच्छा सर। असाइनमेंट्स आपको सर सारे पीछे करने वाला हैं। भी कर सकते हैं मतलब सबमिट। वन सेकेंड दीपेश, वन सेकेंड। असाइनमेंट आपको अभिषेक सारे करने हैं, लेकिन आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम। व्हेन यू फिनिश ऑल द असाइनमेंट्स देन प्लीज सबमिट। ओके सर मैंने सारे असाइनमेंट फिनिश कर लिए हैं। ओके, वेरी गुड दीपेश। तो अभी मतलब सर ऑनलाइन मेरे सबमिट भी कर हैं। सकते हैं। क्या बोल रहे हैं दीपेश? मतलब ऑनलाइन अभी मतलब गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं कि नहीं? आपको असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करने हैं, मुझे नहीं देने हैं। वो टाइम खत्म हो गया तो भी अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। मैं मार्क कर रहा हूँ कि कौन कब सबमिट कर रहा है, किसका कब एडमिशन हुआ है। आई एम मार्किंग ऑल द थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, ठीक है सर, एंड थैंक यू सर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टेक केयर। थैंक यू सर। यस, एनीथिंग एल्स, एनीबडी? सर मेरा भी थोड़ा लेट हुआ था एडमिशन। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है जिस जिसका लेट हुआ था, मेरे पास डिटेल है। आप लोग उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जिन क्वेश्चन में असाइनमेंट में डाउट आई वो आपसे ऑफलाइन पूछना है ना? बिल्कुल पूछना है। ठीक है सर। हम्म। ओके चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है सर। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।